Good morning, everyone. So today's Good class morning, basically, sir. good morning. So let us start today's session. Okay. Today's class basically on digital communication system. So already we have studied introduction to sampling theorem in our last previous class. Okay. So if you have any doubt regarding previous class, what I have told you, so you can ask me the question. Otherwise, we'll start today's session. So today I will share few my handwritten notes. Okay. So you can go through all those things until you are having any sort of reference books. Okay. So you please collect reference books, either Sanjay Sharma or Tafsili Saha. Or if there is chance for having two books, so you can collect two books also. That will be better. So I will give you the note basically on the complete near about complete syllabus, but still you need some book. Okay, you have to study the book for better understanding. So today we'll prove the sampling theorem. Okay, yesterday that means the last class I told you that sampling frequency should be twice of the frequency of the baseband signal. Okay, or it may be in the case of time sampling instant TS that should be less equal to 1 by twice f. That I told you. Okay, so now the signal, okay, that is we have taken here, that is called xt. As I mentioned earlier, xt is your baseband signal. Okay, and gt, that is your the sample signal, and del tst, that was your infinite random impulse. When xt is multiplied with del tst, that is infinite random impulse, then we'll get a sample signal. That is nothing but symbolically we can write it g of t. So today we'll explain in frequency domain analysis, that is spectrum analysis. Okay, so gradually we'll move over there. So okay, so that's why I'm telling here the proof of sampling theorem. So now तुम्हारे पास क्या है, xt है, the xt is the message signal. Now if that xt, if you take some conversion, Fourier transform, then it would be x of omega in angular and or x of f. Okay, so now if the signal is band limited to FM hertz, that means xt, the signal whose maximum available frequency component is FM hertz, f of m, f suffix m. Okay, that means it is band limited to FM hertz. Okay, so now if we consider the spectrum of that signal, that is if it is x of omega. Okay, x of omega, ठीक है, x of omega, x of omega क्या है ये ना, spectrum of the baseband signal, that is x of omega or x of f if you consider in linear. Okay, so that means if the signal is band limited to FM hertz, that means x of omega is 0 for mod of omega is greater than omega. That means मैंने तो बोल दिया ये सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी एफएम हर्ट्ज है और ओमेगा एम है, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, ओमेगा एम से ज्यादा एरिया में कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा.
So that means x of omega will be 0. X of omega would be 0 if the frequency component is greater than omega. Okay. So here omega m is the twice by f. Okay. So this is the case. ये देखो x of omega. So x of omega it is extend from minus omega m to plus omega m. Why it is so? Because x of t is band limited. And इसका frequency component, maximum frequency component क्या है? If you consider in angular, that is omega m, or if you consider in linear, that is fm. So when we make its Fourier transform, so x of omega it will extend over minus omega m to plus omega m, or linearly you can say it's a minus fm to plus fm if it is linear. Okay. So this is your x of omega. So we are assuming that this signal xt, when it is Fourier transform, then it looks like this. So x of t का Fourier transform x of omega है. But your aim is to have gt to g of omega, isn't it? What is gt? gt basically is your sample signal. You please remember xt क्या है, g of t क्या है, okay, x of omega क्या है, okay, and g of omega क्या है. So g of t is the sample signal. If you make Fourier transform of gt, so that will give you g of omega. Okay. So if you have the Fourier transform of gt, then you will have the g of omega. Okay. So what I told you, हमारे पास क्या है, x of t है. So we are whiteboard visible है. So make you Fourier transform. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So xt के Fourier transform करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, x of omega. Correct. You remember this one. Okay, slowly. Don't be confused. Okay. हड़बड़ है कोई बात नहीं है. Now gt. Okay. gt नया सिग्नल आ गया. gt तुमको मालूम है क्या है ना, ये सैंपल सिग्नल, ये सैंपल सिग्नल है. ठीक है, मैंने सैंपलिंग के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो है सैंपलिंग सिग्नल. ओके, सैंपलिंग सिग्नल. तो इसका क्या हो जाएगा, g ऑफ ओमेगा हो जाएगा. ओके. तो gt कैसे मिला ना, gt मिल गया तुम्हारे पास प्लस दे हम दिखाए थे तुमको, g ऑफ t इज इक्वल टू, मैं माउस में लिख रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब होगा, लेकिन तुम समझ जाओगे. x ऑफ t ओके इनटू क्या होगा बोलो, कोई इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इम्पल्स जो था मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, मैं डिटेल बोला था. ये है तुम्हारा gt. ये बात टाइम डोमेन के लिए है. तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, g ऑफ ओमेगा. आज हम g ऑफ ओमेगा फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए क्या होगा, g डेल टी एस का जो है इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है. ओके. तो डेल टी एस क्या था, डेल टी एस टी का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम फूरियर सीरीज, डेल टी एस का फूरियर सीरीज हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इफ यू फाइंड आउट फूरियर सीरीज देन यू विल हैव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डेल टी एस टी. उसके साथ हम क्या करेंगे, एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे. तो टाइम डोमेन में आ गया जी टी. उसके बाद हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो वन बाय वन. सो डेल टी एस का एक्सप्रेशन मैंने लास्ट दिन को बोल दिया था समेशन फॉर्म में. ओके. सो नाउ आई एम क्लियरिंग इट. ओके. तो डेल टी एस टी ये क्या था, देखे थे इनफाइनाइट टेम्पो इम्पल्स था ना, इस तरह. गैप कितना था, टीएस करके था. ठीक है, इंडिविजुअल गैप था टीएस. ये पॉजिटिव साइड है. ठीक है, और नेगेटिव साइड में भी ये 0 होगा, तो ये माइनस टीएस, सॉरी टीएस, ये 2 टीएस, ये 3 टीएस, ऐसा करके तो ये जाएगा. और लेफ्ट में क्या है, ये माइनस टीएस है. ठीक है, ये भी है. सिमिलरली माइनस 2 टीएस में भी और एक है, तो इस तरफ ये जाएगा, ये इस तरफ जाएगा. So that is called the infinite train of impulse. Okay. and इसको कॉल डेल टी एस टी. तो ये हम समेशन करके हम लिखे थे डेल ऑफ टी माइनस के टी एस. ओके. एंड के का वैल्यू था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. ओके. सो ये बेसिकली रिप्रेजेंटिंग डेल टी एस टी ये था. ओके.
तो फूरियर सीरीज तुमको मालूम है, A0 AN BN तुमको निकालनी है ऑलरेडी। वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन सिग्नल सिस्टम क्लास में। तुम्हारा कुछ डाउट है तो यू कैन फॉलो ऑल दोज प्रीवियस वीडियोज जहाँ पे हम लोग फूरियर सीरीज के लिए बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यू कैन फॉलो ऑल दोज वीडियोज। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन इन डिटेल फूरियर सीरीज के लिए, क्योंकि हम लोग फूरियर सीरीज का क्लास हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग डिजिकॉम का क्लास कर रहे हैं। So that was not our purpose. So if you have any doubt, I have taken your classes, so you can follow the videos. Then still if you get any doubt, so I can explain it afterwards. तो देखो ये x ऑफ ओमेगा है। नाउ पीडीएफ इज विजिबल। देखो ये डेल टी एस टी है, ये तुमको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो मल्टीप्लायर है, वन इनपुट पे क्या है एक्स टी है, दूसरा इनपुट पे डेल टी एस टी है, तो जी टी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे जी टी इज नथिंग बट एक्स टी इंटू डेल टी एस टी। दैट ऑल्सो आई हैव शोन यू जी टी, दैट ऑल्सो आई हैव शोन यू इन योर लास्ट क्लास। ओके, तो ये आ गया, ये कैसे आ गया that I am discussing later. So before that you take numerical calculations, then we'll find out how this waveform comes. Okay, so right now I am not discussing it. तो देखो दिखाई दे रहा है, बोलो। सर व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है। व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है, अच्छा। ये देखो तो, नाउ पीडीएफ विजिबल है। यस सर। ओके, तो what is the expression for sample signal as I mentioned, which is nothing but gt is equal to x2 into del tst. Okay, so del tst, okay, so if you have to find out del ts का expression, तो क्या है, तो देखो ये क्या है, पहला टर्म्स क्या है, 1 by ts, ठीक है, देन 2 into 2 by ts cos omega st, नो साइन टर्म, यहाँ पे कोई साइन टर्म नहीं, दैट मीन्स bn का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, और an का वैल्यू है इधर, ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा। तो व्हाइट बोर्ड में हम जाते हैं, चलो क्लियर A0, ओके, ठीक है। A0 क्या होता है, माइनस ts बाई 2 से ts बाई 2 होता है ना, डेल tst dt, ये A0 डेल tst है तुम्हारा xt इंटू dt माइनस t बाई 2 टू प्लस t बाई 2 था, एंड यहाँ पे क्या था 1 बाई ts, रिमेम्बर द फॉर्मूला। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बोलो ना, माइनस ts बाई 2 से प्लस ts बाई 2 इंटीग्रेशन डेल tst dt। जैसे xt के फूरियर ट्रांसफॉर्म A0 निकालने के लिए क्या किए थे हम लोग, 1 अपॉन t माइनस t बाई 2 टू प्लस t बाई 2 xt dt, so that will come out as A0 था। तो ये सुनो, बोलो कुछ तो बोलना है बाबू। तो ये जो है देखो, इसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट हो जाएगा, तुम्हारे पास मालूम है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी, उसको यूनिटी होता है, एरिया अंडर द कर्व दैट इज 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी एस इंटू 1 हो जाएगा। so, कुल मिलाकर अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 बाई टी एस हो गया। सो A0 का वैल्यू कितना निकल गया, 1 बाई टी एस। ओके, समझ गए, नहीं तो बोलो, ठीक है। ये था A0, प्लीज गो थ्रू
फूरियर सीरीज, वो इंट्रोडक्शन जो फूरियर सीरीज था वो प्लीज गो थ्रू। सो A0 में तो बोल दिया 1/TS फॉर्मूला 1/TS इंटू इंटीग्रेशन ओवर माइनस TS बाई ए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तुम लिख सकते हो, लेकिन A0 का क्या है माइनस TS/2 से प्लस TS/2 होगा क्योंकि TS तुम्हारा पीरियड है। ओके, तो डेल TST dt, तो इस एरिया में डेल टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। If you know that integration over minus infinity to plus infinity del t dt that is equal to unity, तो इसका वैल्यू यूनिटी हो गया, सो अल्टीमेटली 1/TS हो गया, करेक्ट। सो A0 का वैल्यू क्या निकल गया 1/TS। प्रीतम में ये नहीं है बाबू, हम दिखा रहा हूं। तो नाउ an का वैल्यू क्या होगा, बोलो फॉर्मूला क्या है 1/TS इंटीग्रेशन ओवर माइनस TS/2 प्लस TS/2 उधर हो जाएगा अपन लेंगे, यहाँ पे क्या होगा बोलो xt, A0 sir. xt का बदले में डेल टी हो जाएगा, हाँ डेल TST इंटू कॉस टर्म आ जाएगा, cos n ओमेगा s t समथिंग लाइक दैट इंटू dt होगा। तो हम क्या बोले थे, डेल टी के साथ xt मल्टीप्लाई होगा तो डेल टी जहां पे रहेगा उस वहां पे वो एग्जिस्ट होगा। तो डेल टी कहाँ पे है, ओरिजिन में तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, cos ऑफ 0 मींस क्या है, cos ऑफ 0 मींस 1, cos ऑफ 0 डिग्री मींस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो गया, फिर से 1/TS हो गया, ठीक है। सो an भी 1/TS हो गया, ओके। सर डेल TST के बाद क्या लिखे हैं, कॉस के बाद? cos n ओमेगा s t, तो कॉस फैक्टर होता है ना, an के लिए cos होता है cos n ओमेगा s t, ठीक है। तो नाउ तो A0 an निकल गया, तो bn क्या होगा बोलो इस बार, bn होगा सिमिलरली 1/TS, लिमिट भी सेम होगा, डेल TS जो है वो भी रहेगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, सर बस साइन ओमेगा st लग जाएगा, हाँ साइन का फैक्टर होगा n ओमेगा s होगा, हाँ। तो साइन 0 क्या होगा, डेल टी 0 में साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 सर। हाँ 0 इंटू 1/TS, तो अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 तो bn क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर। तो इसलिए क्या होगा, फूरियर सीरीज में क्या होगा, कॉस का फैक्टर रहेगा, ठीक है, साइन का फैक्टर नहीं रहेगा। इसलिए देखो अप टू दिस क्लियर, A0 1/TS, an भी 1/TS मिल गया। नाउ फूरियर सीरीज जो होता है A0 प्लस, ठीक है, ट्वाइस इनटू समेशन ओवर n लो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी an cos n ओमेगा st होता है, प्लस bn sin n ओमेगा st ये होता है। तो साइन का पार्ट 0 हो गया, कॉस का पार्ट रहेगा, इसलिए हम वो नोट में चले जाएंगे यहाँ पे। बोलो किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, तो हम व्हाइट बोर्ड को खत्म करके हम नोट में चले जाएंगे। चले यहाँ देखो, तो डेल TST क्या हो गया, 1/TS दोनों का था, A0 का और an का, इसलिए 1/TS बाहर में आ गया। देन 1 प्लस ट्वाइस cos ओमेगा st, n का वैल्यू 1 है, तो n ओमेगा s था, an cos ओमेगा s था, ट्वाइस बाहर में था, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कि तुम लोग, देखो मालूम नहीं है तुम लोग समझ रहे हो। तो A0 n देखो तुम क्लियर कर रहे हैं, क्या था बाबू, डेल TST डिटेल ही दिखाना होगा तुमको। ये क्या है बोलो, A0 प्लस 2 इंटू, ओके, समेशन ओवर n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी an cos n ओमेगा st
प्लस bn हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि bn तो 0 है, ठीक है, bn 0 है, तो a0 का वैल्यू क्या है 1/ts है, पुट कर दो यहाँ पे a0 का वैल्यू प्लस 2, यहाँ पे भी bn an का वैल्यू क्या है बोलो 1/ts, सो 2/ts है विद इन ब्रैकेट n का वैल्यू मान लो, तो केस क्या हो जाएगा cos ओमेगा st होगा, cos ओमेगा st प्लस n का वैल्यू तुम 2 लो तो क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा st होगा, इस तरफ ये आगे बढ़ेगा, लेकिन bn का वैल्यू 0 है इसलिए साइन का कोई नहीं टर्म रहेगा। तो अल्टीमेटली इफ यू टेक 1/ts कॉमन तो कहाँ आ गया 1 रह गया प्लस ट्वाइस cos ओमेगा st प्लस ट्वाइस cos 2 ओमेगा st, इस तरफ ये जाएगा प्लस डॉट 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 होगा ना। सर पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? सर नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। हाँ नीचे वाला ना, ठीक है, तो ऊपर में हम देख देते। तो देखो 1/t ये मालूम है ना, ये क्लियर है ना, ये सर ये विजिबल है। तो यहाँ पे देखो 1/ts दो टर्म में है, तो तुम 1/ts कॉमन ले सकते हैं, 1/ts कॉमन ले लिया तो ये अब क्या होगा 1/ts बाहर चला गया, सो 1 हो गया प्लस 1 + 2 1 + 2 cos क्या होगा ओमेगा st, ओमेगा st यस, प्लस 2 इंटू cos ऑफ क्या होगा 2 ओमेगा s 2 ओमेगा st। प्लस 2 cos 3 ओमेगा st, ये से इंक्रीमेंट होते जाएगा। इंटीग्रेट होते ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। सिमिलरली नेगेटिव में भी होगा, ठीक है, लेकिन cos का वैल्यू तो वो वही है प्लस एंड माइनस। तो चलो हम इसको व्हाइट बोर्ड को पॉज कर स्टॉप करते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे हम लोग वही आ गया 1/ts बाहर में आ गया 1 + 2 cos ओमेगा st प्लस 2 cos 2 ओमेगा st प्लस 2 cos 3 ओमेगा st प्लस डॉट, ये डेल ts का एक्सप्रेशन मिल गया, where omega is equal to twice pi by ts, that is equal to twice pi s। now देखो x gt is equal to xt into del ts t, तो del ts का वैल्यू जो है now we got the del ts, so now put the value of del ts here and you throw out multiply with x। तो देखो वही मैंने कर दिया यहाँ पे, सो gt is equal to 1/ts xt, ठीक है, यहाँ पे देखो डेल ts into xt करोगे तो क्या होगा बाहर में 1/ts, यहाँ पे xt होगा 2xt cos ओमेगा st प्लस 2xt cos 2 ओमेगा st प्लस 2xt cos 3 ओमेगा st, so and so forth। इसलिए 1/ts gt is equal to xt प्लस 2xt cos ओमेगा st प्लस 2xt cos 2 ओमेगा st प्लस 2xt cos 3 ओमेगा st, क्योंकि xt मल्टीप्लाइड है यहाँ पे तो इसलिए ईच एंड एवरी टर्म में xt आ जाएगा। नाउ वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर gt, दैट इज फॉर द सैंपल सिग्नल के लिए टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ वी कैन इजीली टेक द फूरियर ट्रांसफॉर्म, बोथ साइड के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो इफ यू टेक फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, सो gt विल बी g w, ओके, सो g of w हो गया, ओके। नाउ नाउ देखो 1/ts बाहर में xt का क्या हो जाएगा यहाँ पे xt का xw, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। नाउ ट्वाइस xt cos, तो तुमको मालूम है हम लोग पढ़े थे xt into cos, तो xt के साथ cos जब मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो यू प्लीज गो थ्रू प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी वी नो। सो व्हेन xt cos के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा तो वो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो जाएगा स्पेक्ट्रम का, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा कितना अमाउंट होगा, ये फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा s है,
इफ इट इज ओमेगा 0 तो x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इफ इट इज ओमेगा s तो x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा s प्लस x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा s। इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, ट्वाइस ओमेगा s है, फ्रीक्वेंसी अमाउंट डबल हो गया, सो ये होगा x ऑफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा s प्लस x ऑफ ओमेगा 2 ओमेगा s। ठीक है, सिमिलरली 3 ओमेगा s के लिए क्या होगा, x ऑफ ओमेगा माइनस 3 ओमेगा सिमिलरली प्लस x ऑफ ओमेगा प्लस 3 ओमेगा s एंड इट विल कंटिन्यू। सो कुल मिलाकर हमको g ऑफ ओमेगा मिल गया। सो अल्टीमेटली जो g ऑफ ओमेगा है, तो ये देखो समेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लाइक योर इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इनपास। वो टाइम डोमेन में था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो देखो 1/ts यहाँ पे आ गया, दैट इज ऑलवेज इट रिमेन्स कॉमन 1/ts बाहर में। सो नाउ समेशन ऑफ आर, ये देखो माइनस भी है प्लस भी है, सो दैट मीन्स n का वैल्यू 2 होगा, माइनस भी होगा, -1 तो +1, ओके, -2 +2, सो पेयर वाइज होता है, इसलिए summation over n is equal to minus infinity to plus infinity x of omega minus n omega s। now सोचो n का वैल्यू 0 तो क्या होगा, x of omega, so 1 upon ts बाहर में x of omega आ गया। now take n is equal to 1, so x of omega minus omega s, x of omega minus omega s। now take n is equal to -1, तो क्या होगा, x of omega plus omega s, so x of omega plus omega s। now take n is equal to +2, तो क्या होगा, x of omega minus 2 omega s, x of omega minus 2 omega s। now you take n का वैल्यू -2, तो ये क्या हो जाएगा, x of omega plus 2 omega s, so x of omega plus 2 omega s। so that is the expanded form। so in summarize, in short form, in summation form, we can write g of omega। so that two expression, expression number 2, equation number 2 is most important here। so this is the spectrum for your uh, sample signal, okay। so now we'll go for drawing this spectra, now we'll go for drawing this spectra। so now I can show you, please remember this expression, now I am showing you in whiteboard, okay। so expression क्या है, x of omega है, उसके बाद x of omega minus omega s है, x of omega plus omega s है, x of omega plus 2 minus 2 omega s है, इस तरफ ये आगे बढ़ रहा है। so now move to whiteboard, ओके तो मेक इट क्लियर, ओके चलो। सो एक्स ऑफ ओमेगा क्या था, ये था एक्स ऑफ ओमेगा, इधर ओमेगा एंड दैट इज बेसिकली वी आर शोइंग यू एक्स ऑफ ओमेगा दैट इज 0 एंड दैट इज योर माइनस ओमेगा m, this portion is your plus omega m, and now if you consider it in linear, so f is equal to यहाँ पे 0 था, and this position you can consider fm, and this position you can consider this is minus of fm, okay। so something like that, it is in linear form, x of f you can consider, okay। so now we'll show you g of omega, g of omega, okay। the frequency f, so this is now origin, so you can think this is your x of omega था ना पहला टर्म, so this is your x of omega, so or x of f is equal to 0, I am showing you in linear form। तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा बोलो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये क्या होगा fm, ये क्या होगा माइनस f2, वेरी गुड, f, ये f इज इक्वल टू 0। दूसरा टर्म क्या है बोलो, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा s था ना, लिनियर में करोगे x ऑफ f माइनस fs,
तो ये 0 है, सपोज यहाँ पे एफएस है, हाँ यहाँ पे एफएस है, ओके। तो x ऑफ m माइनस एफएस करो, यहाँ पे लाइन टनो यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा दूसरा टर्म, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ठीक है, और बाकी सारे टर्म भी होगा, ट्वाइस एफएस में भी होगा, इधर माइनस एफएस में भी होगा, हाँ यहाँ पे माइनस एफएस होगा, तो यहाँ पे भी और एक होगा, ठीक है, इधर भी होगा, तो इधर भी होगा, ठीक है। ये एक्स ऑफ एफ प्लस एफएस, एफ प्लस एफएस, और ये होगा एक्स ऑफ एफ माइनस एफएस, हाँ थोड़ा जल्दी करो, टाइम खत्म हो जाएगा। तो नाउ देखो, नाउ प्लीज हेल्प मी अगेन वंस, नाउ आई एम टेकिंग अदर कलर। तो ये पॉइंट क्या है बाबू, दिस पॉइंट, दिस लेंथ कितना है, दिस लेंथ, ये लेंथ, इफ यू थिंक अबाउट लेंथ, ये भी एफएम है, ये भी कितना है, ये भी एफएम है, और यू कैन से इट इज प्लस एफएम, दिस इज माइनस एफएम। तो इफ यू थिंक अबाउट मॉड्यूलस, तो दैट इज एफएम, ओके। तो ये भी क्या है, दिस लेंथ भी कितना है बोलो, ये भी एफएम है, बोलो जल्दी Yes, देखो। sir. हाँ, तो दिस लेंथ एफएम, আমি सबको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली माय टॉक प्लीज। वही में तो किताब में तो सब कुछ है, लेकिन तुम लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये क्या है, ये है एफएम हर्ट्ज, क्लियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एफएम हर्ट्ज, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एफएम, एंड फ्रॉम दिस टू दिस अगेन इट इज एफएम हर्ट्ज। तो प्लीज बोलो, ये एफएस है, अप टू दिस पॉइंट इज एफएस, कहां से एफएस है, यहाँ से, दिस लेंथ इज एफएस, करेक्ट, एम आई करेक्ट, दिस इज एफएस, ये एफएस, ये 0, दिस लेंथ पूरा का पूरा लेंथ का क्या है, एफएस। तो एफएस इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो एफएम प्लस एफएम, और ये जो 2 पोर्शन है, FM, sir. हाँ 2 से ज्यादा, मान लो ये डेल एफएम, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ओवर देयर, दिस पोर्शन आई डोंट नो, So 2 FM plus del F. हाँ 2 FM प्लस, सो एफएस इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो डेल एफ का वैल्यू कितना है, वी डोंट नो, सो डेल एफ Sir, वो डेविएशन है ना सर? हाँ ट्वाइस एफएम, ओके। सो ये पोर्शन आ गया, दैट मीन्स वी कैन राइट एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस, हम लिख सकते हैं, राइट। एज एफएस इज इक्वल टू डेल ए प्लस ट्वाइस, मतलब क्या है, एफएस का वैल्यू ट्वाइस से तो ज्यादा, कितना ज्यादा, Yes, डेल एफ sir. अमाउंट ज्यादा। सो ये जो Yes, sir. कंक्लूजन है, Frequency deviation. हाँ, तो इसलिए जो केस है, केस 1, तो मैं कुछ क्राइटेरिया में क्या बोला था, एफएस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ट्वाइस। तो ये जो Yes, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया, एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस। तो देखो एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस है, तो इस स्पेक्ट्रम और इस स्पेक्ट्रम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सो no, sir. सैंपल इज, हाँ इसलिए एफएस ग्रेटर देन ट्वाइस, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गया। किसी को भी कुछ डाउट है तो तुम बोल सकते हो, किसी को भी डाउट है तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। अब दोबारा जब हम ज्वाइन करेंगे ना, तो इस फिगर समथिंग आउट हो जा सकता है। तो देखो, तो ये फर्स्ट एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस Hello, हो sir. गया, बोलो सर, बोलो। सर इस पे तो जूम में टाइम लिमिट का होता है सर बढ़ाने का, तो आप बढ़ा के रख लीजिएगा। होता है क्या, हम लोग तो ये तो रजिस्टर वर्जन है, हमारे परचेज वर्जन तो नहीं है, नहीं परचेज सर, वर्जन फिर भी नहीं होता है। होता है, तो देखेंगे बाद में, हम देखेंगे, ठीक है कैसे होता है, तो तुम जानते हो तो हम फोन करके बता दें, आसान होगा, नहीं तो हम देखेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस हम मिल गया, क्योंकि ये एफएम है, इटसेल्फ ये एफएम है, दिस पोर्शन एफएम हार्ज है, और ये भी एफएम हार्ज है, तो ये गैप था,
ये डेल एफ है, तो इसलिए ई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एफ एस है, तो इसलिए टोटल लेंथ ये जो एफ एस मैंने देखा है ये दैट शुड बी डेल एफ प्लस ट्वाइस एफ। सो इन gist form में, summarized form में, we can write fs is greater than twice. So this is the first case. Now we'll go for second case, that is fs is equal to twice fm. ये हम जाएंगे, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे. Okay, so now you can take it screenshot. Okay, otherwise I can clear it. So if you are interested, you can take screenshot of that, क्योंकि दिमाग में आ जाएगा और वीडियो तो है. तो नाउ आई एम गोइंग फॉर सेकंड केस. फिर से ड्रॉ करना होगा. ये 0 है, f इक्वल टू ओके, और यहाँ पे f इक्वल टू एफ एस है. ठीक है, ये कितना लेंथ होगा? दिस पोर्शन एफ एम हार्स एंड दिस ऑल्सो एफ एम हार्स और दिस ऑल्सो एफ एम हार्स. तो एफ एम प्लस एफ एम हो जाएगा. ये एफ एम, ये भी एफ एम, गैप नहीं है, जस्ट टच किया है. तो ये एफ एस क्या होगा? ये एफ एस है. सर एफ एस इक्वल टू 2fm. एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम. यहाँ पे भी देखो इंटरफेरेंस कुछ नहीं. सो द सेकंड कंडीशन आल्सो फुलफिल. ओके, सो ये एक्स ऑफ एफ, ये एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस था, तो एफ इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू ट्वाइस एफ एम हो गया. जस्ट दे आर टच्ड. Two consecutive samples, they are simply touched, but they are not intersect. So इसलिए ये FM hertz, ये FM hertz, तो F is equal to twice FM हो गया. ठीक है. Now the third condition. So proof of sampling theorem हो गया. If is ये less than twice FM होगा तो क्या होगा हम देखेंगे. ठीक है, थर्ड कंडीशन में F is less than twice. ठीक है, तो ये क्या होगा? बोलो, यहाँ पे कुछ डाउट है तो तुम बोल सकते हो. दो कंडीशन हो गया. एफ एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम एंड एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम. देख लिया. थर्ड कंडीशन है, ये तीन कंडीशन से ज्यादा सिवाय और कुछ नहीं होगा. एफ एस लेस देन ट्वाइस.